ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੰਦੇਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁੰਜਰ ਮੈਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਟਿਕਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟੋਰ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇਵੈਂਟ 4 ਸਤੰਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਲਈ ਕਲੈਪਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕਲੈਪਿੰਗ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਉਂ ਹੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੋਮਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼, ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟਾਕ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਿਊ ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਜ਼, ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟਾਕ। ਯੂਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੈਨ ਵੀਅਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਟਨ ਵੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਾਕ। ਟਾਕ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਬੋਲੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 2 ਮੇਨ ਸਕਿੱਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਮੇਨ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਕਿੱਲ ਆਫ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੜੀ ਜੀ ਬੂਥੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਹਨਾ, ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਬੂਥਾ ਸੁਧਾਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸੰਦੀਪ ਮੈਮ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਫਲਾਇਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, क्योंकि सानू किया जाता है ना कि ऊपर से सीखो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और कमाओ पैसे। ठीक है, तो ऊपर तो सीखना है ते ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਮ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਕੀਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਰੌਕ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਕਿੱਲ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 ਮੇਨ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਬੈਸਟ, ਦ ਬੈਸਟ। ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹਦੀ ਮੈਮ ਨੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਕਸਟਮਰ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੋਲੋ ਅਪ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆਈਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਲਵਰ। ਸਿਸਟਮ ਲਵਰ ਬਣੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਮੋਰ ਐਕਟਿਵ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਸ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਸ 30 ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 30 ਅਗਰ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 2500 ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 2500 ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ, ਆਪਣੇ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ, ਥਰਡ ਲਾਈਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਚੱਕਿਆ ਆਰਡਰ ਪਾਤਾ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਲੀਡਰਸ ਇਨ ਆਵਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਸਕਰਨ ਮੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਪੈਨਾਲਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ, ਹਨਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਬਿਲੀਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵਾਪਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਮ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਟੇਕਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆਫ ਆਵਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅੰਟਿਲ ਦੇ ਬਿਕਮ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ। ਆਪਣੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲਓ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਮੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 4 ਸਤੰਬਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟਿਕਟ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए गुरप्रीत कौर बंदेर मैम के लिए, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स शेयर किए हैं और होप सो आपने नोट भी किए होंगे। मैम ने बोला कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने एसोसिएट्स की, अपने कस्टमर्स की। हम बोलते हैं ना कि कस्टमर्स नहीं टिकते, तो लिखिए जो बीच में ये मैं बोल रही हूँ ना, ये ट्रेनिंग का पार्ट ही है जो वहां से पॉइंट्स सीखे हैं। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, एड ऑन कर लीजिए, रिटेंशन विद अटेंशन। जो रिटेंशन है, कस्टमर कैसे टिकेगा, वो किससे कनेक्टेड है? अटेंशन से। अटेंशन कैसे? अपने कस्टमर के रिजल्ट पे अटेंशन पे कीजिए, अपने एसोसिएट को प्रॉफिटेबल बनाने पे अटेंशन पे कीजिए, अपने एसोसिएट को सुपरवाइजर तक ले जाने पे अटेंशन पे कीजिए, और फिर सुपरवाइजर को एक लीडर बनाने पे अटेंशन पे कीजिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिटेंशन। इसको नोट कर लीजिए, रिटेंशन कनेक्टेड विद द अटेंशन। तो नेक्स्ट हम जिनको इनवाइट करने वाले हैं, जो हमारे साथ वहाँ एक्स्ट्रा वेगन्स में सीख के आए हैं, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, तो मैं उनको इनवाइट कर रही हूँ, संदीप मैम को। मैम ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, मैं दसना चाहती हूँ, मेरा नाम संदीप कौर है। मेरा ये सैकेंड एक्सट्रावेगेंजा सी जो बंबास्टिक सी। मेरी लाइफ का मीन इन्नी अच्छी ट्रेनिंग मैंने अज तक नहीं सुनी, बट मैं अपने पॉइंट जरूर तुहाडे नाल शेयर करांगी। सब तो पहला पॉइंट मैं ये सीखा कि डोंट प्रीजज अदर पर्सन। किसी भी प्रीजज ना करो कि ये पर्सन कर सकता है या नहीं कर सकता। उत्थे असीं सुने एक चप्पल वेचण वाला पर्सन भी अगर हर्बलाइफ च ग्रोथ कर सकता, अपनी चेक नूं वधा सकता है, तो असीं क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इहदे लई कोई एजुकेशन नहीं चाहिदी, कोई ज्यादा असीं रिच नहीं होने चाहिए। सो किसी भी प्रीजज ना करो। एंड नेक्स्ट, ऑलवेज यूर ऑडियो एंड वीडियो मैच। माधुरी शेट्टी मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट दस्या कि तुहाडी ऑडियो जो तुसी बोल रहे हो तुहाडी ओह मैच करनी चाहिए तुहाडे दिखावे दे नाल। जो तुसी हैगे हो ओही बोलो, जो तुसी है नहीं वो कदे ना बोलो किसी पर्सन। ओके, एंड नेक्स्ट है, जितना कहंदे सिखांगे उन्नी असीं सुधरांगे। किदी किदी लाइफ च सुधार होया? मेरी लाइफ च तो बहुत सुधार होया। अपनी लाइफ च सुधार करने लई सानू हमेशा सिखदे रहना जरूरी हैगा। ठीक है जी। एंड ट्रेनिंग दा रोल सिर्फ 10% है, 90% सानू रोड ते लोग सिखाउणगे जिन्हां नूं असीं इनविटेशन करांगे। राइट, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। बहुत अच्छा पॉइंट लग्या मैनू। एंड नेक्स्ट हैगा, सबसे पहले आप गेट टीम बनो। अगर तुसी वर्ल्ड टीम हो, एक्टिव वर्ल्ड टीम हो, चलो प्रेजिडेंट का भी साडा ड्रीम लेवल हैगा, बट प्रेजिडेंट तो पहला तुसी गेट टीम बनो। गेट टीम ते जो चेक आऊगा ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰੋ या टीम बन के। राइट, एंड नेक्स्ट हैगा, हमें पहले काबल बनना है। काबल बनांगे फिर ही सानू सक्सेस मिलूगी। एंड नेक्स्ट है, बहुत अमेजिंग पॉइंट मैनू लग्या, कहते जेब में गांधी हो चाहे ना हो, जेब में गांधी हो चाहे ना हो, बट आपके दिल में लोगों को फिट करने की आंधी जरूर होनी चाहिए। सो बहुत अमेजिंग पॉइंट सीगा। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਰਲ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। So, बहुत अमेजिंग मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए संदीप मैम के लिए। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है?
ओके, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए संदीप मैम के लिए, कितने अच्छे पॉइंट्स शेयर किए हैं कि खुद के अंदर आग होनी चाहिए, जो गुंजन मैम हमेशा बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। कहते हैं कि भुख होनी चाहिए है, किसी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ नहीं लगा सकते, ਭੁੱਖ ਨੂੰ शांत कर सकते हैं, ਭੁੱਖ ਦਾ हल कर सकते हैं, बट भुੱਖ जगा नहीं सकते किसी के अंदर। इसी तरह ही अपने हम सबके अंदर वो आग होनी चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, इस मिशन का हिस्सा बनना है। क्योंकि हर्बल लाइफ कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि जो प्रोडक्ट सेल करती है, ये एक मिशन है, मिशन है लोगों को फिट करने का, मिशन है लोगों को खुद के पैरों पे खड़ा करने का, मिशन है लोगों के अधूरे सपने पूरे करने का, मिशन है जो लोगों के मन में ऐसे है कि हम अमीर नहीं हो सकते, उनको अमीर करने का। ये एक मिशन है, मार्क ह्यूज सर का बड़ा सा मिशन है। तो मैं चाहती हूँ वो सब लोग एंड ओके, उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ आप सबको, सीधे होके बैठ जाइए। हम सब अब हमारे सीनियर कोच से सुनेंगे, ठीक है? क्योंकि उनके जैसे बोलते हैं ना कि सब कुछ सुन लिया, लेकिन अभी जो मेन पार्ट होने वाला है उस पे जरूर ध्यान देना है। तो आपकी बढ़िया सी हूटिंग और क्लैपिंग के साथ, हूटिंग सुनेगी नहीं, चलो दिखेगी, तो क्लैपिंग आप कर सकते हैं बढ़िया सी स्माइल और क्लैपिंग के साथ। मैं अभी हम सबके सुपर कोच डॉक्टर गुंजन मैम को इनवाइट करने जा रही हूँ। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू पर्ल मैम, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट। मैं चाहती हूँ सब पैनलिस्ट के लिए और सब लोगों के लिए जिन्होंने एक्स्ट्रावागेंजा को अटेंड किया है। मुझे पता है आप जितने भी लोग एक्स्ट्रावागेंजा को अटेंड करके आप बहुत सारी चीजें सीख के आए हो, आप बहुत सारी एनर्जी को लेके आए और आपके पास बहुत कुछ है डिलीवर करने के लिए, बट हमारे पास टाइम शॉर्ट है। और इसके बाद 7 बजे हमारी एक और कॉल है हमारे सीनियर कोचेस के साथ, गुरमुख सर के साथ, जहाँ पे वो एक्स्ट्रावागेंजा की एक्सपीरियंस शेयरिंग करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार मैं फिजिकल इवेंट में प्रेजेंट नहीं थी, और लेकिन आप लोगों की वजह से जो आपने डिलीवर किया है, जो आपने एनर्जी दी है, जो आपने पॉइंट्स बताए हैं, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मैंने एक्स्ट्रावागेंजा अटेंड कर लिया, तो थैंक यू सो मच टू ऑल द पैनलिस्ट और जितने लोगों ने भी अटेंड किया। एंड आई एम श्योर ये इवेंट आपकी लाइफ को बदल देगा, क्योंकि मुझे याद है 3 साल पहले जब मैंने अपना फर्स्ट एक्स्ट्रावागेंजा अटेंड किया था बैंगलोर में, फर्स्ट टाइम मैं एक्स्ट्रावागेंजा के लिए ही फ्लाइट चढ़ के गई थी। तब मेरी इतनी इनकम भी नहीं थी कि फ्लाइट टिकट बुक करवा लूं, तो पैसे उधार लेके एक फ्लाइट की टिकट लेके मैं एक्स्ट्रावागेंजा गई। पर जब मैं उस हॉल में घुसी, इतना बड़ा हॉल मैंने जिंदगी में नहीं देखा था, और इतनी एनर्जी, इतना पागलपन नहीं देखा था। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही करना है, उसके बाद मुड़ के कभी नहीं देखा। और इस इवेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आज हम जो भी हैं, और मैं अपने फ्यूचर के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और अभी हम लास्ट 10 मिनट लगाएंगे, और मैं आप सबको एक चीज बताना चाहती हूँ, आप सबको अब लास्ट 10 मिनट के लिए हिलना नहीं है, क्योंकि इन लास्ट 10 मिनट में जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कुछ ऐसी बातें मैं आपसे शेयर करूंगी जो आपको अभी तक पता नहीं थी, कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो आपके अंदर तक जाने वाली है और हमेशा आपके साथ रहेंगी, हमेशा। तो कॉल पे टिके ना जिनके कैमराज ऑफ है, देखो कोचिस हो, कॉल पे बैठे और कैमरा ऑफ है, बातें नहीं बनती। या तो हम कॉल को लीव कर दें, या तो कैमरा ऑन कर दे, ऑफ कर दे। क्योंकि आज जो मैं आपको स्टोरी बताऊंगी ना, मुझे नहीं पता आपने किस चैलेंज की वजह से कैमरा ऑफ रखा है, लेकिन जब मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी तो सच में आपको पछतावा होगा कि हम कौन सी प्रॉब्लम्स को लेके बैठे हैं, हम कौन से चैलेंजेस को लेके बैठे हैं। तो आपको अच्छी तरह टिकना है, राइट? सबसे पहले तो मैं बहुत कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, बड़ा अच्छे पॉइंट्स बोले सबने। तो पर्ल मैम ने बड़ा अच्छा बोला कि जब मुंह खोलो स्टोरी बोलो। तो मैंने बड़ा अच्छा एक जगह सुना था कि व्यापार वही होगा जिसका प्रचार होगा। आप देखेंगे इलेक्शन हुई थी, कितना प्रचार होता है, लाखों करोड़ों रुपए प्रचार पे लगता है, राइट? कोई पिज्जा की दुकान खुली है, बर्गर की खुली है, कपड़े की खुली है, क्या प्रमोशन होता है, क्या पर्चे आते हैं? क्योंकि जिस व्यापार का प्रचार नहीं होता वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपने आप को जरूर सोचिए कि क्या आप अपने बिजनेस का प्रचार कर रहे हैं या आप अपने घर में बैठे हैं। आप अपने बिजनेस के बारे में बात नहीं करोगे तो कौन करेगा, बताइए मुझे। अगर आप अपने बिजनेस के बारे में बात नहीं करोगे तो कौन करेगा? एक दुकानदार को खुद ही दुकान खोलनी पड़ती है, एक रेडी वाले को खुद ही रेडी लगानी पड़ती है, एक बुटीक वाले को खुद दुकान खोलनी पड़ती है। क्या उसके पड़ोसी आके करते हैं, ये रिश्तेदार करते हैं? खुद करना पड़ता है, क्योंकि ये उसका बिजनेस है। तो आप अपने बिजनेस का प्रचार कर रहे हैं नहीं? अपने आप से पूछो कि आज आपने कितना प्रमोशन किया अपने बिजनेस का,
कितने लोगों को बताया कि अच्छी सेहत देते हैं, कितने लोगों को बताया कि एक्स्ट्रा इनकम देते हैं, कितने लोगों को बताया कि आप हमारे साथ एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, प्रचार कर रहे हो या नहीं। तो सिंपल सा फंडा हर्बलाइफ का समझ लीजिए, अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं कर रहे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आपके बिजनेस को आपको प्रमोट करना पड़ेगा। क्लियरली लिख लीजिए, आपके बिजनेस को सिर्फ आपको प्रमोट करना पड़ेगा। तो ये अपने आप से पूछो। दूसरा पॉइंट बड़ा अच्छा मैम ने बोला, एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी। कुछ कोचेस होते हैं जो हमेशा कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। आईडी खोल के देखो, वॉल्यूम पॉइंट कितना है, कस्टमर कितने हैं, एफर्ट कस्टमर कितने, एसोसिएट कितने हैं। बिजी होने से कुछ नहीं होता, बिजी हर कोई कहता है, नर्सरी का बच्चा भी कहता है बिजी। आप प्रोडक्टिव कितने हैं, आज के दिन में सुबह कितना वॉल्यूम था, रात तक कितना हो गया, सुबह तक कितने कस्टमर थे, रात तक कितने होंगे, इस हफ्ते मंडे को आपका क्या बिजनेस था और फ्राइडे को आपका क्या बिजनेस है। तो अपने आप को ये बिजी बिजी वाले माइंडसेट से निकालो। हमने ये बोल बोल के कि मैं बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी, इसको ब्लॉक कर दिया। पता क्या बना दिया, क्या कि बिजी, कि मेरे पास कुछ नया करने का टाइम नहीं। तो आज के बाद अपने आप को बोलो मेरे पास बहुत टाइम है, मुझे बस मैनेज ही करना है, मेरे पास बहुत टाइम है। तो काइंडली आपके काम का रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं जरूर देखो, एनालाइज जरूर करो। और बहुत अच्छा बोला, एक दिन में नहीं होगा बट एक दिन जरूर होगा। आप सबने देखा होगा जो जो एक्स्ट्रावेगेंजा गए थे, आप लोगों ने प्रेसिडेंट टीम की रिकॉग्निशन देखी, 1 मिलियन देखी, 2 मिलियन देखी, चेयरमैन क्लब की आपने देखी होगी। किस किसने चरणजीत सर की देखी रिकॉग्निशन, किस किसने देखी, और कौन एक सपना सजा के आया अपनी आंखों में। वाह, मैंने तो जो वीडियोस के उसके थ्रू देखा और जो मैंने लास्ट नेशनल इवेंट पे देखा था, डेफिनेटली पहले प्रेसिडेंट्स टीम एक ड्रीम था और अब चेयरमैन क्लब एक ड्रीम है। तो हमने कितना बड़ा विजन देखा। बट मेरा आप सबसे एक सवाल, चेयरमैन क्लब की रिकॉग्निशन हुई, प्रेसिडेंट टीम की रिकॉग्निशन हुई, मिल टीम्स की रिकॉग्निशन हुई, क्या वो दिन उनकी जिंदगी में ऐसे ही आ गया? क्या वो बिजनेस में पैदा हुए और उनको कंपनी का मैसेज आया कि कल आपकी रिकॉग्निशन है? नहीं, चरणजीत सर ने 22 साल 20 साल इस बिजनेस को दिए चेयरमैन क्लब में। क्या क्या हुआ उनकी स्टोरी में, क्या हमें पता है? क्या क्या उनकी जर्नी में हुआ, कितनी बार जीरो हुए, कितने दोस्तों ने छोड़ा, कितने रिश्तेदारों ने छोड़ा, ऐसा क्या क्या चैलेंज आया जब लगा कि परिवार चुनना है या बिजनेस चुनना है। तो एक दिन में नहीं होता, बट लगे रहोगे तो एक दिन जरूर आता है। तो आप सबको मन में ये उम्मीद कभी नहीं छोड़नी कि मुझसे नहीं होएगा या मेरा नहीं होएगा। हार उस दिन होएगी जिस दिन आप हार मान लोगे, ये लिखो। जिस दिन आपने ये मन में विश्वास डाल लिया कि मेरा नहीं होना, आप उस दिन हार गए। लेकिन आप अपना काम कर रहे हैं और आपके मन में एक विश्वास है मेरा होने ही वाला है, आज नहीं तो कल होना ही है, आज नहीं तो कल होएगा ही, होएगा ही होएगा, होना ही होना है, फल मिलना ही मिलना है, आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। तो गलती से अपने आप को ये मत बोलना मेरा तो नहीं हो रहा, हमेशा क्या बोलना है, आएगा, अपना समय भी आएगा, अपना टाइम भी आएगा, अपना टाइम भी आएगा। किस किस को विश्वास है अपना टाइम आएगा? मुझे तो बहुत विश्वास है, बहुत बड़ा विश्वास है। उसके बाद बहुत अच्छा बोला रिद्धि मैम ने शेयर किया कि चेंज जब हम करते हैं ना, चेंज सबसे अनकंफर्टेबल लगता है कि चेंज। अभी तो दिन को 4 से 5 सोते थे, बट अब 4 से 5 क्रैम्पिंग करनी है। पहले तो सुबह लेट उठते थे, बट अब 5 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त अटेंड करनी है, एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, पहले तो किससे बात नहीं करते थे, अब बात करना है, हेजिटेशन हो रही है, लोग चेंज करने को रेडी नहीं है। और एक चीज बोलते हैं, मैं तो हमेशा तो इदा दी हां, मैं तो हमेशा तो इदा दा आई हां, ते जे हमेशा तो इदा दा ही हो, केड़े पहाड़ तोड़ ले फिर? मेरा ये क्वेश्चन कि अगर आप 30-40 साल से ऐसे ही हो, तो आपके इस नेचर ने आपको क्या दे दिया जिंदगी में? क्या हम बहुत सक्सेसफुल हो गए? क्या हमने बहुत नाम कमा लिया? अगर उस स्वभाव ने, उस नेचर ने आपको 30, 40, 50 साल में कुछ नहीं दिया, तो समझ जाओ बदलना है, समझ जाओ बदलना है। तो जब आपको बदलना है, आपको कोई जूम कॉल के लिए करने के लिए बोलते हैं नहीं आता, ये नहीं बोलना मुझे नहीं आता है, सीखो, चेंज करो। बात करने में हेजिटेशन होती है, चेंज करो। 30 सेकंड की वीडियो बनाने में हेजिटेशन होती है, चेंज करो। स्टार्टिंग में जब भी कुछ चेंज करोगे मुश्किल लगेगा, बट आहिस्ता आहिस्ता वो चीज आपकी आदत बन जाएगी और अगर करते रहे आपको उसका बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा। हर्बलाइफ से पहले जब मैंने बहुत ज्यादा वेट गेन किया था, मेरी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया था जब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला गया था, मुझे किससे मिलने का मन नहीं करता था, किससे बात करने का मन नहीं करता था। 2019 में जाके मैंने अपना सोशल मीडिया स्टार्ट किया, मैं आपको बताना चाहती हूँ। और मेरे लिए बहुत मुश्किल लगता था, मुझे लगता था इंस्टाग्राम फेसबुक पे बोलना, क्योंकि मैं तो लोगों से भी नहीं मिलना चाहती थी। कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा मेरा चला गया था लाइफ से। फिर भी मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे बोलती रही। और कभी कभी मैं ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ, मुझे
अगर साहिब सर तुम को ये चीज बहुत अच्छी तरह पता है। मैं साहिब सर को ये चीज बोलती थी स्टार्टिंग में, जब मैं फेसबुक इंस्टाग्राम करती थी, कि साहिब जब मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक की स्टोरी बनानी होती है ना, उससे 10 मिनट पहले मुझे घबराहट होने लग जाती है। ये मैं साहिब सर को बोलती थी कि मुझे रोज सुबह उठ के ना 10 मिनट पहले ये घबराहट होती है, हाय मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डालनी है, हाय मैंने फेसबुक पे वीडियो, ना मुझे घबराहट होती है। पर उस घबराहट में भी मैं हमेशा करती थी, और आज उसका ये रिजल्ट है। मेरे सारे फ्रंट लाइन प्रेफर्ड कस्टमर्स मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप की वीडियो से, इसके लिए आप बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं। तो क्या वो मेरे कस्टमर 2019 में आ गए? वो 23 में आए हैं, 22 में आए, 19 से 22 तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया। मुझे 22, 23, 24 में रिजल्ट आया मेरे सोशल मीडिया का। तो कभी कभी जब आप चीजें पहले करोगे, पहला इन्विटेशन, पहला कैंप, पहली फ्रेश पार्टी, पहली वीडियो, घबराहट होएगी। किसी ने यहाँ पे बोला नॉर्मल है घबराहट होना, लेकिन अपनी घबराहट को हावी नहीं करना अपने ऊपर। परेशानी नहीं हो जाना कि मेरे को परेशानी होती है, मेरी धड़कन बढ़ती है, मुझे घबराहट होती है, कोई क्या बोलेगा, कोई नहीं। ये सबके साथ होता है, डर सबको लगता है, बट करते रहेंगे तो आदत बन जाएगी। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था। अपने ऊपर बिलीफ रखना है, किसी को विश्वास है नहीं है, आप अपने ऊपर जरूर करिए। बड़ा अच्छा पॉइंट बोला। आज के बाद ये नहीं बोलना ऑर्डर डालना, पहली तारीख को अपना राशन मंगाना है। पहले परांठे खाते थे, अब शेक पीते हैं, तुम्हारा राशन है। पहले चाय पीते थे, अब ए फ्रेश पीते हैं, तुम्हारा राशन है। टाइम मैनेजमेंट को करना है। बड़ा अच्छा जसकरण मैम ने, मुझे लगता है सिर्फ 30 सेकंड ही लिए होंगे, पर 30 सेकंड में जो उन्होंने पॉइंट बोल दिया ना, लाजवाब बोले। क्लैपिंग सबके लिए, पर मैं चाहती हूँ जसकरण मैम के लिए स्पेशल क्लैपिंग। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि हमने इनको डे 1 से देखा है। वो लेडी जिसको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ जसकरण मैम इतने काम करते हैं ना, इतने काम करते थे, सिर्फ अपने की खर्चे चल जाए, सूटों की तरपाई भी करना, पार्लर भी, छोटी सी मनियारी की दुकान भी खोली है, आशा वर्कर की तरह भी काम कर रहे थे। इतना कुछ छोटा छोटा वो कर रहे थे ताकि मेरा घर का सिस्टम मैनेज रहे, मेरे बच्चों को मैं सपोर्ट कर सकूं, एक अच्छी लाइफ दे सकूं विदाउट फादर भी। और ये आंखें भी नहीं उठाते थे। और आज जब इन्होंने बोला, मुझे मजा ही आ गया। और मैं इतना शुक्राना करती हूँ कि परमात्मा हर्बल लाइफ ने इनको चुना और इन्होंने भी इज्जत की उसकी, राइट। तो बड़ा अच्छा जसकरण मैम ने बोला कि दूध को आप 1 दिन रख सकते हो, दही को आप 2-3 दिन रख सकते हो, बट अगर उसको आपने रिड़क के उसको सारा प्रोसेस करके घी बना दिया, उसको आप कितना समय रख सकते हो। तो इसका क्या मतलब है? कमजोर इंसान 1-2 दिन का मेहमान है, कमजोर इंसान नहीं टिकेगा। जो नेगेटिविटी से घबरा गया, किसी के छोड़ने से घबरा गया, किसी की बात से घबरा गया, काम से घबरा गया, जो इंसान तपेगा, जो इंसान मुश्किल चैलेंजेस में भी हंसता रहेगा, निकलेगा, वो घी बनेगा। और घी महंगा है या तेल? दिक्कत आ रही है ना, घी महंगा है या तेल महंगा है? सॉरी, मिल्क महंगा है, घी महंगा है, राइट। कहते हैं कि चाय में गिर जाए मक्खी तो लोग चाय फेंक देते हैं, और अगर घी में मक्खी गिर जाए, घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी फेंक देते हैं। तो आपको समझना है, आपको वो चाय का कप बनना है 5 रुपए वाला, या आपको वो घी का डब्बा बनना है, राइट। सो आपको इस चीज को जरूर समझना है। बहुत अच्छा पॉइंट था। टाइम को मैनेज करना है, और गुरप्रीत मैम ने बहुत अच्छा बोला, सिस्टम लवर बनना है। कोई ट्रेनिंग आए तो मन में फीलिंग आनी चाहिए, वाओ, एक और ट्रेनिंग, एक और मौका सीखने का। न्यूट्रिशन यूज करना तो मैं एक्साइटेड हूँ, सुबह उठ के क्रेविंग होनी चाहिए शेक पीने की, फ्रेश पीने की, न्यूट्रिशन यूज करने की। तो सिस्टम का लवर बनना है, आपको प्यार करना है सिस्टम से, डुप्लीकेशन करनी है। गुरप्रीत मैम ने बोला, मैं इवेंट पे थी 4 दिन से, कोई काम नहीं, एक्टिविटी नहीं हो रहा था, मेरा ऑटो मोड पे 2500 हो गया। और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें विजुअल दिखता है। तो एवरी डे मुझे दिख रहा था इनका 2-300 वॉल्यूम बढ़ रहा है। कैसे बढ़ा? इनके पीछे भी, क्योंकि इन्होंने सिखा दिया, इन्होंने अपने कुछ टीम मेंबर्स को सिखा दिया। तो ये जरूरी है कि आप खुद सीखें और अपने लोगों को सिखाएं। और बहुत अच्छा संदीप मैम ने बोला, आपका ऑडियो और आपका वीडियो मैच होना चाहिए। आप कहते हैं आप नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी के हैं, क्या आप लगते हो? आप कहते हो कि मेरा इतना रिजल्ट है, क्या आपको देख के वो लगता है? क्या आपके कॉन्फिडेंस में वो दिखता है? क्या आपकी आंखों में वो चमक है? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने लिखे, वैसे सारे पॉइंट्स अमेजिंग थे। तो अगेन जितने लोग एक्स्ट्रावागेंजा के, मैं आपके लिए बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये पॉइंट दिए। अभी जो लोग नहीं गए थे वो एक बार हाथ ऊपर करो। अब एक्स्ट्रावागेंजा तो हो गया
है ना, वापस उसमें नहीं जा सकते, नेक्स्ट इवेंट्स की टिकट करा सकते हैं। बट मैं आपको ना एक दो चीजें बताना चाहती हूँ। क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप एक्स्ट्रावेगेंजा नहीं भी गए, जो भी कारण था, अगर आप एक्स्ट्रावेगेंजा नहीं भी गए, लेकिन आज आपको कॉल पे जो पॉइंट बता दिए हैं, आपने इस पे ही काम कर लिया तो आप कामयाब हो जाओगे। ये लिखो, इस पे ही काम कर लो। ये जो 15-20 पॉइंट आपको मिल गए ना, आप इसी पे काम कर लो। आप एक्स्ट्रावेगेंजा नहीं भी जा पाए, आप तब भी कामयाब हो जाओगे। दूसरी चीज, जितने लोग एक्स्ट्रावेगेंजा गए थे, अब मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ, आप लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होके आए हो, आप लोग बहुत ज्यादा एनर्जी लेके आए हो, लेकिन ये चीज का जरूर ध्यान रखना कि ये सिर्फ मोटिवेशनल एनर्जी ही ना रह जाए, ये आपके काम में भी आए। मोटिवेट हो गए, एक्साइटेड हो गए, ये नहीं कि हफ्ता घर बैठ के यही फोटो देखी जाए, यही स्टेटस लगाई जाए। क्या करना है, निकलना है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं भी देख रही थी, मुझे यहीं पे दिख रहे थे, स्वर्ण मैम वो एक्टिविटी पे बैठे हैं, किंग कैंप पे बैठे, मुझे अभी उनका कॉल आया था। अमेजिंग, एक्शन लेना है। तो जितने लोग गए थे, लेकिन एक्शन लेना है, अब सिर्फ मोटिवेटेड आपको नहीं रहना है, राइट। सो एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। जैस्मीन ने बहुत अच्छा शेयर किया। आप जो भी करना चाहते हैं उसका प्लान क्या है। आप कहते हैं 30 कस्टमर, कितनी ये फ्रेश पार्टी करनी है, कितने इनविटेशन करने हैं, कितने लोगों से मिलना है, मुझे ज्यादा टीम अच्छी बनानी है, तो आपके नेक्स्ट संग्रो एसटीएस की कितनी टिकटें बुक है, सुपरवाइजर स्कूल में आपके कितने सुपरवाइजर जा रहे हैं, आपको कस्टमर का अच्छा रिजल्ट डालना है। साहिब सर ने बड़ा अच्छा पॉइंट कल क्लब मैजिक ग्रुप में डाला था, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्होंने बोला था कि आपके कस्टमर के रिजल्ट की जो क्वालिटी है ना, उस पर डिपेंड करेगा आपको कितने रेफरल आएंगे। मतलब आपके जो कस्टमर है उसका रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है, इसी चीज पे डिपेंड करेगा कि वो आपको आगे कितने कस्टमर देगा। तो आपके कस्टमर को रिजल्ट अच्छा करने के लिए आपके पास वी डू ट्रांसफॉर्मेशंस है। आपके लोग 1 जुलाई, अच्छा आप मेरी वीडियो देखते हो, आप मेरी वीडियो में मैं बोल रही हूँ वी डू ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, 1 जुलाई से शुरू है। आपको प्रमोट करना है, आपके लिए कितना आसान हो गया है। तो आप काइंडली एक्शन प्लान बनाइए, अपनी कॉपी के ऊपर अपनी एक्टिविटीज लिखिए, अपने गोल्स को लिखिए, अपने इवेंट्स की कितनी टिकटें बुक हो गई, कितने लोग रहते हैं, कितनों से बात करनी है। काइंडली क्लियर कट बिजनेस कीजिए। हवा में अगर आप बातें करें, आप नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। और लास्ट में मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जिम्मेवारी और बहानों को छोड़ना, ये बड़ा बड़ा लिख लीजिए। आपको अपने बिजनेस, अपने कस्टमर्स की ऐसी जिम्मेवारी लेनी है जैसे वो आपके घर का सदस्य है और जैसे आपके भगवान ने ये ड्यूटी लगाई है। अब नेक्स्ट 5 मिनट आपको बहुत ध्यान से समझना है, सुनना है। क्यों मैं आपसे शेयर कर रही हूं, क्योंकि हमारे कोचेस को जब कोई चैलेंज आए ना, चरणजीत सर को बहुत बड़े चैलेंज आए, हमने उनकी स्टोरी सुनी, हम बड़े इंस्पायर हुए, हमें हिम्मत मिली। गुरुमुख सर को कुछ चैलेंजेस आए, हम बड़े ज्यादा इंस्पायर हुए, राइट। तो जब भी किसी कोच को कोई चैलेंज इंसान भगवान देता है तो वो इसलिए देता है कि ये इस मुसीबत से निकल जाए, इसको तो मैं निकाल दूंगा, और ये हिम्मत दे बाकी लोगों को, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जर्नी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप मेरी फैमिली है, ओके। क्या होता है, बहुत बार हमें छोटा सा चैलेंज आता है, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कस्टमर का फोन उठाना बंद कर देते हैं, तो घर में कोई रिश्तेदार आगे जूम कॉल पे आना बंद कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है कोच से बात करना बंद कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है इनएक्टिव हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। एक्सक्यूज, बहाना बहुत बड़ा हो जाता है। मैम गर्मी बहुत है, मैम सर्दी बहुत है, मैम घर में रिश्तेदार आए हैं, मैम पड़ोसी ने ऐसा बोल दिया। तो अभी मैं आपसे एक अपनी ये रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि पिछले एक महीने से मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब लास्ट संगरूर एसटीएस हुई तब भी बहुत लोगों को बात नहीं पता थी। 4 महीने से थोड़ा सा हम हेल्थ चैलेंज नहीं बोल सकते, इंसिडेंटल चैलेंज था कि थोड़ा सा 4 महीने पहले हमारा बेटा कहीं पे गिर गया था खेलते हुए, जिसकी वजह से उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी। उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, वो बिल्कुल ठीक था। बट 3 महीने के बाद जब फिर से चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बोला कि ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका प्रोसेस होएगा, जो क्लॉट बना वो हम रिमूव कर देंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने बोला कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो हमने गुरमुख सर को कॉल किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जब प्रॉब्लम का पहले पता लगता है मतलब भगवान ने आपको खुद बताया है, आप सोल्यूशन कीजिए। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ 26 तारीख की एसटीएस जब गुरमुख सर आए थे और आपने देखा मैं भी स्टेज पे थी और साहिब सर भी स्टेज पे थे, तो हम सब को, मुझे और साहिब सर को और प्रेमजीत सर को, हमें ये पता था कि 27 तारीख को हमें पीजीआई में एडमिट होना है। बट क्या आपको हमारे चेहरे से लगा था उस इवेंट में?
आप इमेजिन, भगवान ना करे किसी पे ये समाए, लेकिन मैं आपको एटीट्यूड की बात बता रही हूँ कि आपके लिए आपका काम कितना जरूरी होना चाहिए। हमें गुरमुख सर ने भी कॉल करके ये चीज बोली कि गुंजन आप एसटीएस कर रहे हो? हमने कहा सर डेफिनेटली एसटीएस कर रहे हैं, ये चैलेंज से तो हम निकल ही गए हैं, भगवान हमारे साथ है, डेफिनेटली हम एसटीएस करें, क्योंकि हमारी टीम के 100 कोचेज ने मेहनत की है 1 महीने से लोगों को लेके आने की। मुझे और साहिब सर को इस चीज की रियलाइजेशन थी कि आपने लोगों से कैसे कैसे बात करके उनको लेके आए हैं। 26 तारीख के इवेंट करने के बाद, इतने मेकअप के बाद, इतने भंगड़े सबके बाद, शाम को आके हमने पैकिंग की और नेक्स्ट डे हम एडमिट हो गए। और उसके बाद कुछ 3-4 दिन के बाद हमारे बेटे का प्रोसेस हुआ, वो बिल्कुल नॉर्मली ठीक हो गया, जो क्लॉट था वो रिमूव हो गया, टोटल 1 घंटे का वो प्रोसेस था, वो आ गया, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो नॉर्मल छोटा सा प्रोसेस था, जैसे लोगों का कि उनको किडनी का, कभी कोई पथरी का करना पड़ता है, आंख के मोती का, छोटा मोटा चलता है ना, वो बिल्कुल ठीक हो गया। बट मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जब भी जिस दिन हमारे बेटे का वो प्रोसीजर हुआ, सर्जिकल प्रोसेस हुआ, और जब किसी का थोड़ा सा भी सर्जरी होता है तो आपको भी पता होगा कि बच्चा भी डिलीवर होता है या किडनी का भी कुछ हो, तो स्टार्टिंग में 48 आवर्स उसको आईसीयू में रखा जाता है। क्यों? ताकि ध्यान रखा जाए ज्यादा, है ना, इन्फेक्शन से बचाया जाए। तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि पूरी रात जागने के बाद भी, अपने 3 साल के बेटे के पूरी रात आईसीयू में होने के बाद भी, अगले दिन सुबह हमने सेशन किया था। 2 दिन उसको आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा, पर 2 दिन सुबह उठ के हमने सेशन किया था। हॉस्पिटल से सेशन करना बहुत मुश्किल था। आप सबने नोटिस किया कि बहुत दिन में सेशन गाड़ी से करती रही, पार्किंग में जाके गाड़ी में बैठ के मैं सेशन करती थी, क्योंकि हॉस्पिटल रूम में कभी डॉक्टर आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, डिस्टर्बेंस होती थी, और सेशंस करते थे। और उसके बाद एक्टिविटी भी करते रहे। आप सब लोगों के उन दिनों में मैसेज आते थे, और आपको हमसे वैसे रिप्लाई भी आता था, तो किसी को लगा कि मैम या सर हमारे लिए अवेलेबल नहीं है? किसी को लगा? और आप सबको कब हमने वो बात शेयर की? 16 तारीख को, जब वो इवेंट था। और 16 तारीख को भी पूरा साहिब सर का ऐसा था कि आप चले जाइए, या मैं कह रही थी मैं चल जाऊं, बट मुझे सारा उसका ट्रीटमेंट का प्रोसेस पता था, बीइंग अ डॉक्टर मुझे पूरा उसका टेक्निकल चीजें पता थी, तो मेरा होना वहां पे जरूरी था, क्योंकि मुझे सब कुछ वहां पे पता है, डॉक्टर से मैं ही डील कर रही थी, तो मेरा वहां पे होना जरूरी था। अगेन जब एक्स्ट्रावेगेंजा आया तो साहिब सर ने बोला कि अब आप चले जाइए, लेकिन ये था कि मेरा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे सब कुछ पता था प्रोसेस का। और कल सुबह का भी जो गुरमुख सर की कॉल थी वो मैंने की, कल सुबह की भी कॉल हमने की, जो क्योंकि मुझे एक कॉल आया वीना मैम का कि गुंजन आप कर पाओगे, सब यहाँ पे हैं। मुझे पता था क्या सिचुएशन है, बट मैंने बोला यस, क्योंकि मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं है कि किसी चीज के लिए मेरा कोच मुझ पर विश्वास करे और मैं ना बोल दूं। और 26 तारीख तक से कल तक, पिछले कितने दिन हो गए, 20 डेज वो हमारे अस्पताल में थे। सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ही इज फाइन, वो नाच रहा है, गा रहा है, बिल्कुल आपकी ब्लेसिंग है, वो टोटली फाइन है। वो मैं आपसे शेयर क्या कर रही हूँ, तो हमेशा मैं और साहिब सर ये बात करते थे कि गुरुमुख सर भी कहते थे कोई बात नहीं, आपका सेशन हुआ तो ठीक है, नहीं तो हमसे हेल्प ले लेना। बट मुझे हमेशा लगता था कि वो जो 200 लोग सुबह बैठते हैं ना, वो इस उम्मीद में बैठते हैं कि हम ना सुबह कॉल सुनेंगे, मैम का चेहरा देखेंगे, एनर्जी आ जाएगी। जो लोग गिरे हुए होते हैं, जो लोग डिमोटिवेट होते हैं, उनको लगता है नहीं सुबह की कॉल सुनेंगे एनर्जी आ जाएगी, दिन अच्छा निकल जाएगा। अगर वो हमसे नहीं मिलते, उनके दिन बहुत सारे कोचेस थे, कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, बहुत सारे कस्टमर्स को आ रहे थे, हमने किसी को फील नहीं होने दिया कि हम किसी चैलेंजर, मुझे लगता है 16 तारीख से पहले किसी को भी नहीं पता था। और उस चीज ने हमें किसने हैंडल किया, क्योंकि चरणजीत सर की स्टोरी में हमने सुना था कि मुझे एक इवेंट पे जाना था और मेरी वाइफ का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया था, वो आईसीयू में थी, और वो आईसीयू में थी, और तब भी मैं टाई लगा के स्टेज पे भंगड़ा डाल रहा था, और वापस आके टाई उतार के बाहर बैठ गया आईसीयू के, जब मेरी वाइफ को ऑपरेट हुआ। तो आप जो चरणजीत सर की वो देख के आए हैं ना, रिकॉग्निशन चेयरमैन क्लब की, जो आप देखते हो, चरणजीत सिंह के पीछे वो स्टोरी है। तो चरणजीत सिंह 2012 में इतने बड़े चैलेंज से निकल गया, चेयरमैन क्लब बन गए। तो सोचो कि अब मुझे और साहिब सर को क्या विश्वास हो गया, सोचो मुझे और साहिब सर को क्या विश्वास हो गया। लेकिन आपको अब सिर्फ ये चीज समझनी है कि अगर आपको पता है कि अगले दिन आपने अपने बच्चे को एक ऑपरेट के लिए भेजना है, वो भी हेड को ऑपरेट है, क्या आप इवेंट में स्टेज पे चढ़ के भंगड़ा डाल पाओगे? क्या आपको पता होगा कि सारी रात आपका बेटा आईसीयू में रहे और आप भी जागे, आप अगले दिन कॉल पे बड़ी सी 32 दांतों की स्माइल कर पाओगे? आपको पता है कि आप प्रॉब्लम में हो, आप भी इमोशनली डिस्टर्ब हो, बट आपका कस्टमर भी आगे से बोल रहा है, आपको एसोसिएट भी बोल रहा है, मैम मैंने आपको बोला था मेरे कस्टमर से बात करो, आप बात क्यों नहीं कर रहे? मैम मैंने बोला था आप मेरा ये काम कर दो, क्यों नहीं कर रहे? किसी को भी इतने दिन में नहीं बोला है कि आपको क्या पता मैं प्रॉब्लम में हूँ, ऐसे क्यों बोल रहे हो। सबको हंस के बोला कि कोई दिक्कत नहीं,
पता है क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हर्बल लाइफ में हम हैं तो ये जिम्मेवारी आप सबकी, हमारी टीम की भी भगवान ने दी है। वो हमारा एक बच्चा है, ये 200 भी हमारे बच्चे ही हैं। जितनी जरूरत उसको मेरी थी उतनी जरूरत मेरी टीम को मेरी है। तो मैं चाहती हूं कि आज एक सवाल आप अपने आप से जरूर पूछें, क्या भगवान ना करे अगेन, लेकिन क्या अगर आप इस सिचुएशन में कभी हुए, क्या आप तब भी ट्रेनिंग में जाओगे? क्या आप तब भी जूम कॉल पे बैठोगे? क्या आप तब भी हंसोगे? क्या आप तब भी तैयार होके कॉल पे बैठोगे? ये सवाल अपने आप से पूछना। इतनी जो हम शौहरत देखते हैं, चकाचौंध देखते हैं, इसके पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स हैं। और जब मैंने गुरमुख सर से बात की, सर कहते गुंजन बहुत बहुत बधाइयां, परमात्मा ने थोड़ी स्टोरी बहुत स्ट्रांग बनाती और एक बस जब भी लेवल होना होता है ना, उस तो बहुत बड़ा चैलेंज आना होता है। और वो बिल्कुल, और जब आप मजबूत बनते हैं, जब हम इतने मजबूत बने, मैं साहिब से प्रेम जी से, जब हम इतने स्ट्रांग थे, जब हम इतने रिलैक्स थे, तो आपको पता है परमात्मा ने हमारा कमान इतना आसानी से करा दिया। परमात्मा ने हमारा इतना अच्छा करा दिया, जो लोगों को लगता था बहुत बड़ी चीज है, वो इतनी आसानी से होगी कि हम हैरान हो गए, यार ये तो कोई बात ही नहीं थी, ये तो कोई चक्कर ही नहीं था, ये तो ऐसा था कि जैसे खरोंच हो गई या बच्चा गिर गया, तो कोई बात ही नहीं है। तो आपको जो भगवान ने कर्म दिया है, अगर आपको एक कोच बनाया है, अच्छे कोच बनो। छोटे छोटे बहाने करे, रिश्तेदार आ गया, मस्सी आ गई, पुआ आ गई, गर्मी है, सर्दी है, लग गई, बेटे का पेट खराब हो गया, ये हो गया, नो। आपकी टीम आपके बच्चे हैं, घर में चैलेंज आ गया, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होगी, नो। आपको पहाड़ जितना मजबूत बनना है, क्योंकि जो सपने हम लेके चले हैं ना, इन सपनों के पीछे सैक्रिफाइस भी होएगा। तो आपने जो जिंदगी चुनी है, उसके लिए अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करो, उसमें अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करो। और जब चरणजीत सर ने ये स्टोरी शेयर की थी, बड़ी हिम्मत मिली थी। गुरमुख सर को भी कुछ चैलेंजेस शेयर की थी, हिम्मत मिली। तो मैं और साहिब सर तो 20 दिन यही बात करते थे कि चरणजीत सर कैसे बोलते थे, मेरी वाइफ आईसीयू में थी और मैं भंगड़ा डाल रहा था, तो सेम चीज हमारे साथ होगी, बच्चा आईसीयू में था और हम कॉल पे वो सब कर रहे थे। तो अगर हमें परमात्मा ने ये चैलेंज दिया, ये लेसन दिया, पहले तो मैं परमात्मा का चैलेंज के लिए भी शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना मजबूत बनाया और निकाला। तो ये पता क्यों आया? ताकि ये इंस्पिरेशन आप सबके लिए बने। तो अगर आप आज के बाद किसी चैलेंज में हो, या अगर आप काम नहीं कर रहे, मैं चाहती हूं आप अपने आप से ये पूछो, आप काम क्यों नहीं कर रहे? गर्मी के लिए नहीं कर रहे, डर लगता है इसलिए इनविटेशन नहीं करे, रिश्तेदार करते नहीं आगे, बर्थडे आगे नहीं करे, क्यों नहीं कर रहे काम? आस्क योरसेल्फ, क्या आपका चैलेंज पिछले 20 दिन में मेरे और साहिब सर से बड़ा था? यस और नो बताइए, ऐसे ऐसे कीजिए। क्या कुछ ऐसा चैलेंज लाइफ में चल रहा है जो मैं और साहिब सर जिस चीज से हमारी फैमिली निकली उससे बड़ा था? बताइए, फिर हम काम क्यों नहीं कर रहे? तो बहानों को छोड़ो, सपनों को सीरियस लो। और अगर फैमिली में कोई चैलेंज आया ना, मैं आपको गारंटी से और अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, वो तो परमात्मा ने ही निकाल देना है। वो भगवान ने आपका रास्ता इतना आसान बनाना है, वो आपको इतना आशीर्वाद देना है, इतना साथ देना है, वो सब ठीक हो जाना है। सो काइंडली अपने वाई को स्ट्रॉन्ग करो। काइंडली हमेशा सोचो कि आप जितनी भी प्रॉब्लम में हो, आपकी टीम को आपकी जरूरत है, दुनिया को आपकी जरूरत है, भगवान ने आपको हर्बल लाइफ करने के लिए चूज किया है। और इमोशनली वीक नहीं होना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना है। छोटी छोटी बातों पे घबराना नहीं, हाय मर गए, मुक गए, होना नहीं, कह गया, नो, ये कमजोर लोगों के लिए जिंदगी नहीं है। कमजोर बनना है, कोच को फोन करो, रो, खत्म करो, बस। डोंट बी वीक, क्योंकि आप वीक बन गए, आप छोड़ गए, आपने नहीं किया, आपको क्या लगता है किसी को फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है किसी को फर्क पड़ेगा अगर आप छोड़ गए? लेकिन अगर आप टिके रहे तो फिर आप लाखों जिंदगी सुधार जाओगे। जितने भी लोगों को हमने वहां पे स्टेज पे देखा, वो कितनी जिंदगियों को बदल रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पे आए, सब अब नाम ले रहे हैं उनका। अगर वो छोड़ जाते, क्या वो हिम्मत बनते सबकी? वो किसी की हिम्मत नहीं बनते, राइट? सो इमोशनली स्ट्रांग रहो, हम आपके साथ खड़े हैं, परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है, तभी आप इस काम में हैं, तभी आप इस काम में, नहीं तो इस काम में कभी नहीं आ पाते थे। और वंस अगेन मैं आपका बहुत बड़ा थैंक यू करती हूँ। आप लोग बेस्ट टीम है। शायद हम इतने बड़े चैलेंज से इतनी आसानी से निकल गए, आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से, आप लोगों की थैंक यू की वजह से। और हमें पिछले 20 दिन में पता लगा है कि हर्बल लाइफ में आप क्या कमाते हो।
पिछले 20 दिन में हमें पता लगा कि हर्बल लाइफ में क्या कमाते हो। हमारे कोचेस ने हमें एक बार बोला था कि हर्बल लाइफ में ना पैसा छोड़ दो, पैसा बहुत लोग कमा रहे हैं, लेकिन जो आप दुआएं कमाते हो ना, ये आपको तब काम आती है जब आप कहीं अस्पताल में हो, या जब कहीं कोई, मतलब दुआएं वहां काम आती है जहां पैसा चलना बंद हो जाता है। और ये हमें 20 दिन में समझ आ गई कि दुआएं क्या काम करती हैं। तो लोगों की दुआएं कमाओ, अच्छा रहो, हम्बल रहो, मदद करो, प्रॉब्लम से निकालो, उनको समझो, राइट। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 26 मई से पहले जो डॉक्टर गुंजन थी वो अलग थी, बट अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ मैंने रीलें आने वाली हैं, तुसी देखी चलो, बस देखी चलो, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया, इतना स्ट्रांग बनाया, इतनी स्ट्रेंथ दी कि ऐसे चैलेंज से मुझे लगा मैं निकल गई। ऐसे चैलेंज के बाद भी मैं सुबह कॉल पे नाची हूँ, तो मुझे क्या रोक देगा, मेरा भगवान मेरे साथ है। सो इतना विश्वास अपने आप पे रखिए, आप बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो कौन कौन अपने फ्यूचर में बहुत बड़ा करेगा और घबराएगा नहीं? घबराना नहीं है, कभी कभी छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, घबराना नहीं, नेगेटिव नहीं बोलना। पिछले 20 दिन में मैंने और साहब से ना एक बार भी नेगेटिव नहीं बोला, मैं आपको बता रही हूँ, एक बार भी नेगेटिव नहीं बोला है, राइट। सो इनका ध्यान रखिए। और अभी कुछ प्रैक्टिकल चीजों पे चलेंगे। क्या आपकी 4 सितंबर की टिकट बुक है? क्या आपकी 4 सितंबर की टिकट बुक है? क्या बहाना है? अपने आप को पूछो, क्या बहाना है, क्यों नहीं बुक? मेरी और साहिब सर की बुक है, मेरे और साहिब सर की बुक है, जबकि हमें पता है, अभी हमें पता नहीं कि एक पर्सन को रुकना पड़े, जाना पड़े, पर हम दोनों जाएंगे। मैं आपको एडवांस में बता रही हूँ, क्योंकि परमात्मा पे विश्वास है। आप क्यों नहीं जा रहे? क्यों? किसी का ब्याह ना आ जाए, किसी का भोग ना आ जाए, कोई रिश्तेदार ना आ जाए, किसका वेट कर रहे हो? मेरा आपसे एक क्वेश्चन, किसका वेट कर रहे हो? क्यों नहीं करवाई टिकट? क्या बहाना है? संगरूर एसटीएस की कितनी टिकट्स हो गई? लिखना है। जो जुलाई में 25, आई थिंक 21 जुलाई को सुपरवाइजर स्कूल होने जा रहा है, क्या उसकी आपकी टिकट बुक है? क्यों नहीं बुक? क्या बहाना है? क्या बहाना है? बस नहीं मिलती, क्या बहाना है? गर्मी ज्यादा है, क्या बहाना है? साथ कोई नहीं है, क्या बहाना है आपका? हमें पता था हमारी जरूरत है। साहिब सर 16 तारीख को इवेंट के लिए आए, संगरूर एस्टेज के लिए 2 दिन पहले आ गए थे, 4 दिन साहिब सर एक्स्ट्रावागैंजा में थे, और सब कुछ वहां पे हमने अकेले मैनेज किया है आराम से। हॉस्पिटल में सब कुछ, अजीज को मैं डिस्चार्ज भी अकेले करवा के लेके आई हूँ, अकेले में उसको डिस्चार्ज करवा के लेके आई। क्यों? प्रायोरिटीज क्लियर है, मुझे पता है हर्बल लाइफ जरूरी है, साहिब सर की जरूरत है वहां पे, और मैं यहाँ मैनेज करूंगी। आप ही अपने आप से पूछिए। तो जो इवेंट्स आ रहे हैं उसको आपने बुक किया है या नहीं? तो संगरूर एसटीएस, वीडू ट्रांसफॉर्मेशन 4 सितंबर को, और ये सोल्ड आउट हो जाएगा, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। उसके बाद मुझे कोई भी बोले कि मैम कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, 10,000 भी देना नहीं हो सकता, आज ही टिकट बुक होनी चाहिए। 25 तारीख के बाद 1500 की है, पर तब तक टिकट जाएगी नहीं। अमोल खिलारे कोई ऐसा नॉर्मल बंदा नहीं है, राइट, वो होना चाहिए। उसके बाद सुपरवाइजर स्कूल आ गया, चरणजीत सर की एक्टिव सुपरवाइजर अकेडमी की आपकी टिकट बुक है या नहीं? हमारी जिंदगी बहुत सुंदर होने वाली है, हमारे लिए वो जिंदगी इंतजार कर रही है कि लोग मिलने को तरसेंगे, लोगों को हम इंस्पायर करेंगे, लोगों के चेहरों पे स्माइल लेके आएंगे। बट उससे पहले ये जो रास्ता है ये तय करना पड़ेगा। अगर कहीं ना कहीं आप किसी इवेंट को मिस कर देते हो, किसी ट्रेनिंग को मिस कर देते हो, आप एक्टिविटी नहीं करते हो, आप वीडियो नहीं बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप अभी सीरियस नहीं हो हर्बल लाइफ में। तो हर्बल लाइफ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको काइंडली आप मजाक में मत लो, राइट। सो काइंडली इवेंट्स की टिकट्स बुक करके आप इस पे आइए, अपने लोगों का ध्यान रखिए। ध्यान रखो आपके लोग आपको डेली डाइट की फोटो भेजते हैं नहीं भेजते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं नहीं भेजते हैं, लोगों को क्लियरली समझाओ। पहली कॉल पे बैठना है, कोई यूट्यूब पे नहीं बैठना। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल सुबह की कॉल जब हुई, लोग ही नहीं थे वहां पे, लीडर्स ही नहीं थे। मैं क्या बोलूं, आप लीडर्स हो, आपको यूट्यूब ज्वाइन करना है। कोई लीडर मुझे यूट्यूब लिंक पे नहीं चाहिए, आप पहली कॉल पे होना चाहिए। क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते पहले? क्यों? नो लीडर ऑन यूट्यूब। मैं आपको क्लियरली बता दूं, मुझे कोई यूट्यूब पे नहीं चाहिए आप में से। आप पहली कॉल पे होने चाहिए, आप दिखने चाहिए, हैंड रेज किया करो, बोला करो, अपनी पहचान बनाओ, भीड़ में गुम नहीं रहना है। संडे को बोलो रिजल्ट, फ्राइडे को बोलो रिजल्ट, हैंड रेज करके रखो, ऐसे ऐसे करो, दिखाओ तो सही आ गए। असि आराम नाल बैठे हैं, पक्खे घूमी जांदे ऊपर,
राइट। तो अपने आप को दिखाइए, अपने लोगों को कॉल पे बिठाइए, स्क्रीनशॉट मंगवाइए, उनके लंच की फोटो मंगाइए। मैंने बोला था एज कोचेस, आप जिन ग्रुप्स में आपके फ्रेश की सेल्फी, आपके शेक की सेल्फी, आपके लंच की सेल्फी होनी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आप दिखने चाहिए अपने लोगों को। एक लीडर जो दिखता नहीं है, लोग उसको नहीं फॉलो करते हैं, राइट। सो काइंडली सिस्टम की इंपॉर्टेंस बनाइए, सिस्टम से प्यार करिए, लोगों को प्यार करवाइए। लोगों का आना जरूरी है पर उनका टिकना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मंडे से हम टीम वाइज जूम कॉल्स भी शुरू कर रहे हैं, तो जो लोग चाहते हैं हम उनकी टीम्स के साथ जूम कॉल करें, आप मैसेज हमें व्हाट्सएप पे डाउन कर सकते हैं। तो मंडे से हम हर लीडर को आधे घंटे का समय देंगे जिसमें हम उनकी टीम्स के साथ जूम कॉल्स करेंगे। तो बहुत अच्छा सिस्टम होने वाला है। हम बैकबोन बन के आपके साथ खड़े हैं। बस स्ट्रांग रहिए, मेंटली स्ट्रांग रहिए, इमोशनली स्ट्रांग रहिए, काम कीजिए। आपका कर्मा हर भले परमात्मा ने आपको दिया है, उसकी इज्जत कीजिए, नहीं तो ये हाथों से निकल भी जाती होती है, राइट। सो कौन कौन आप बहुत सारा काम करेगा, बातें नहीं करेगा, काम करेगा, बातें नहीं करेगा, काम करेगा। वाह, अमेजिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अगेन मैं आपसे इतना प्राउड फील करती हूँ, आपकी वजह से हमें स्ट्रेंथ मिलती है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके फ्यूचर के लिए। और अभी जो लास्ट कुछ समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बस इसको क्लोज करने वाले हैं कॉल को। सो लास्ट में क्लोजिंग वर्ड्स के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगी हम सबके सीनियर कोच प्रेमजीत सर को। तो बढ़िया सी क्लैपिंग सर के लिए कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बड़े सी क्लैप करें डॉक्टर गुंजन के लिए, साहब सर के लिए, और उन लोगों के लिए जो स्पेक्टेकुलर होके आए हैं एंड जिन्होंने इतना अच्छा वहाँ का एक्सपीरियंस बताया। हमें भी सारी नॉलेज हो गई है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था। एक बार बढ़िया सी क्लैप सारे अपने लिए करो। एंड मैं बताना चाहता हूँ कि जो चैलेंज है ये लाइफ का एक पार्ट है, ये सारी जिंदगी आप पाते रहेंगे। एंड एक ना ऑपरेशन थिएटर के बाद ना बहुत लोग इकट्ठे हुए थे, रिलेटिव थे काफ़ी सारे, और वो वहाँ पे वो बहुत शोर मचा रहे थे कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, हमारा बच्चा अंदर पड़ा है, उसका ऑपरेट करवाना है, डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। तो 10 मिनट में डॉक्टर भी आ गए, वहाँ पे भागे भागे डॉक्टर आए, डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने बच्चे का ऑपरेट किया। बाहर से लोग बोल रहे थे ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं रखते हैं, लेट आते हैं, ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो उन्होंने बच्चे का ऑपरेट किया, 3 घंटे लगे ऑपरेशन में। ऑपरेट के बाद डॉक्टर बाहर आए एंड उन्होंने पूछा कि कैसा है हमारा बच्चा। उन्होंने कहा आपका बच्चा ठीक है, मुझे जाना है। तो डॉक्टर साहब वहाँ से निकल गए। तो पीछे से वो बोल रहे थे ये बहुत घमंडी है, ये तो बात ही नहीं करते हैं हमारे से, आए अंदर चले गए, ऑपरेट करके जल्द भागने को जा रहे हैं। तो एक नर्स ने बताया कि आप ऐसे मत बोलिए, आपको नहीं पता है कि डॉक्टर साहब इतनी जल्दी में क्यों थे, क्योंकि इनके जो खुद का बेटा है उसकी डेथ हो गई है, उसका भी संस्कार होना है। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब यहाँ पे आए हैं, आपके बच्चे का ऑपरेट किया है, उनको खुद इतना बड़ा चैलेंज आया है। तो ये जो स्टोरीज हमने ट्रेनिंग में सुनी है, 8 साल में बहुत बहुत स्टोरी सुनी है हमने, उसकी वजह से हमारा मन पक्का हुआ है। आप सोचिए कि जिस इंसान का एक पोता है, अभी वो 3 साल का, उसको 34 टांके लगे हैं, उसका ऑपरेट हुआ है, और दोनों बच्चे पीजीआई में हैं। 15 दिन से सोए नहीं है बच्चे दोनों, साहब सर गुंजन मैम सोए नहीं है 15 दिन से, फिर भी वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और इवेंट्स पे जा रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं। 16 जुलाई का इवेंट है, वो किया है। उसके ऊपर आप देखिए कि सतवीर मैम का सदमा, कितना बड़ा सदमा हमारे मन में था। ये सारे बहुत बड़े चैलेंज थे, लेकिन हमें पता था कि ये सारे हमें ही सहने हैं, किसी को बताने नहीं है। अभी ये टाइम आया, आपको क्यों बता रहे हैं कि आपको ऐसा जिंदगी में आपको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। हमने चरणजीत सर को सुना है कि उनकी क्या स्टोरी थी। गुरमुख सर के मदर की डेथ हो गई थी, वो उनको इवेंट पे जाना पड़ा था, संस्कार बाद में हुआ था। तो जिंदगी में बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर फ्यूचर अच्छा है, अगर मंजिल बढ़िया है, फिर रास्ते की चिंता नहीं करनी है, रास्ता भी बढ़िया हो जाएगा अपने आप। गुंजन मैम ने सही बोला कि जब परमात्मा ने कुछ बड़ी दात देनी होती है तो चैलेंज भी बहुत बड़ा आता है, लेकिन परमात्मा भी देखता है कि मेरा बच्चा कितना चैलेंज सह सकता है। हम उसके बच्चे हैं, उसकी अंश है परमात्मा की, हम सब उसके बच्चे हैं। जैसे एक फादर होता है, वो बच्चे को छोटा वाला थैला देता है उठाने के लिए, बड़ा वाला खुद ही उठाता है। ऐसे भगवान आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं। भगवान पे भरोसा रखें और पूरी मेहनत करें, ऑनेस्टी से सारा काम करें, ईमानदारी से करें। आप बहुत बड़ा करने वाले हो। आने वाले जो 50 साल 100 साल हैं वो आपके हैं। अपने लिए क्लैपिंग करो। आने वाले 100 साल वेलनेस कंपनी के हैं। आप उस कंपनी में हो जो वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी है, हर्बल लाइफ कंपनी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले 2, 4, 5 साल में बहुत बड़ा धमाल होने वाला, आपको पता ही नहीं है। अभी तो आप लोगों को कहते हो ना कि शेक ले लो, मेंबरशिप करवा लो,
फिर लोग आपके घुटने पकड़ेंगे कि हमारी प्लीज मेंबरशिप करो, हमें दवाइयों से बचाओ, हमें मेडिकल सिस्टम से बचाओ। ये ऐसा सिस्टम आपके हाथ में आ गया, इसकी वैल्यू को समझो। अभी लोगों को समझ नहीं आई है ये इंडस्ट्री क्या है, जिनको समझ आ गई है वो धमाल करने वाले हैं। लगे रहिए, बहुत बड़ा आप करने वाले हो। जैसे सर बोलते हैं कि किसी एक खानदान में ना कोई एक डायमंड पैदा होता है पुश्तों के बाद, जो 7 पीढ़ियों को बदल देता है, उनकी तकदीर बदल देता है। मुझे आप सब में वो नजर आ रहा है। पता नहीं आपको भरोसा है अपने ऊपर कि नहीं, मुझे आप सब पे बहुत ज्यादा प्राउड है कि आप सारे वो करने वाले हो। और आने वाले जो सिस्टम हैं, ट्रेनिंग्स हैं, बहुत बढ़िया हैं, उनकी टिकट्स करवाइए। जैसा आपको सर मैम बोलते हैं वैसा करिए, अपने आप को बदलिए। और जो 3 बातें वहां से सिखाई गई हैं, यूज, वियर एंड टॉक, उस पर काम करना है। और जूम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाइए, सिस्टम में बैठाइए। आपकी जिंदगी तो बदलेगी, आपकी आने वाली जो तकदीर है, आपके बच्चे हैं, आपकी जो जनरेशन है, उनकी भी लाइफ बदलेगी। और मैं भगवान का बहुत थैंक्स करता हूँ कि सारा कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। एंड मैं बताना चाहता हूँ कि संडे को सतवीर मैम का जो है वो अंतिम अरदास होनी है। संडे को आप नोट करो सारे, हम भी वहाँ पे जाएंगे, आप सबको वहाँ पे आना है। उनके लिए अरदास करनी है कि परमात्मा उनको अपने चरणों में रखे। हमारी एक फुलवाड़ी का फूल टूट गया है जो भगवान के चरणों में चला गया हमेशा के लिए। भगवान उनको अपने चरणों में रखें, अच्छी जगह पे रखें, बैकुंठ में रखें। और पीछे जो परिवार है उसको हिम्मत दें और वो सारा कुछ सहने की। तो सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग है। जुग जुग जियो और लोगों की सेवा करो। थैंक यू वेरी मच, लव यू और ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए, सर ने बहुत अच्छा शेयर किया है। तो दिस इज लाइफ, ये जिंदगी है, बट जो भी चैलेंज आए हारना नहीं है, टूटना नहीं है, टिकना है। हम भगवान का अंश है, अगर हम में सांस चलती है हम भगवान का अंश है। मेंटली अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना और हम बहुत बढ़िया करने वाले हैं। मैं आपके फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हूँ। आपकी वजह से आपके बच्चों की जो जिंदगी बदलेगी, आपकी वजह से आपके आने वाली पीढ़ियों की जो जिंदगी बदलेगी, हमें पता भी नहीं है। तो हमारे हर्बल लाइफ एक बिजनेस नहीं है, आपके शोल्डर्स पे, आपके कंधों पे ना एक जिम्मेवारी है। इसको जिम्मेवारी समझ के करिए कि सुबह कॉल पे बैठना है तो मुझे अच्छी तरह बैठना है, क्योंकि मेरे लोग मुझे देखते हैं। मैं अच्छी तरह नहीं बैठेंगे तो उनका हिम्मत टूटती है। मैं एडवांस टिकट्स नहीं कराऊंगी, मेरे लोग नहीं जाएंगे, मेरे लोग नहीं जाएंगे। अपने काम को अपनी जिम्मेवारी समझो जो परमात्मा ने आपके शोल्डर्स पे डाली है। और जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स को खिड़े मत्थे नाल चढ़दी कला में लेके साथ में चलना है। क्योंकि आप इस चीज को याद रखिए, हर्बल लाइफ को आप 2 मिनट छोड़ भी दीजिए। क्या हर्बल लाइफ से बाहर लोगों की सर्जरीज नहीं हो रही, एक्सीडेंट नहीं हो रहे, डाइवोर्स नहीं हो रहे, डेथ नहीं हो रही, लोगों को जॉब से नहीं निकाला जा रहा, लोगों के घरों में प्रॉब्लम्स नहीं हो रही? क्या हर्बल लाइफ से बाहर ये सब कुछ नहीं हो रहा? तो अगर ये सब था, ये सब जिंदगी का हिस्सा है, तो ये ऐसे भी होना है तो ये वैसे भी होना है। लेकिन अगर परमात्मा ने आपको ये राह दे दिया, मतलब ये छतरी है। जो चैलेंज लाइफ में आने हैं वो आने हैं, बट हर्बल लाइफ देके परमात्मा ने आपको वो छतरी दे दी कि आप गीले नहीं होगे। चैलेंज आएगा, आप निकल जाओगे, आप उस बारिश में नहीं गीले होगे। सो उस परमात्मा पे विश्वास रखो। एंड कल सुबह से नॉर्मल सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। हम नॉर्मल जो हमारे सेशन चलते थे वो चलेंगे। सब कोचिज को नहा धो के टेबल कुर्सी पे बैठ के प्रॉपर्ली ज्वाइन करना है, एक न्यू बिगिनिंग की तरह कीजिए। हम इतना बड़ा इवेंट अटेंड करके आए हैं, अपने हर पर्सन को बिठाना है, कैमरा ऑन करवाना है, सिस्टम की वैल्यू बनाओ। जो पर्सन कहता है कॉल पे नहीं बैठना, फोटोज नहीं डालनी, ये नहीं करना, उसको बोलिए कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं और से ले लीजिए, राइट। और जिनको पर्सनल जूम कॉल का टाइम चाहिए, आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, हम आपका शेड्यूल में प्लान करने की कोशिश करेंगे। और फ्यूचर बिजनेस बिल्डर स्कूल को जरूर बुक कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आप हैं तो हम हैं, और वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।